Hi guys. Let's start with another session. So today we are starting with the introduction to the corporate finance and investment banking. What the corporate finance is and what is the branches of the corporate finance and what is the investment banking is one of the main component of the corporate finance. So let's begin with this journey. So what is the learning objective of this video? So by the end of this video, you will be able to discuss the main capital investment streams. What is the main capital investment activities like debt financing or the capital financing is a leverage buyout or the whatever is, and what is the valuation techniques, whether this is a DCF, whether this is the cost method, whether this is the relative valuations. Second, in this we are explaining the process of mergers and acquisitions and the key considerations for the deal. And in the third video, we are compare the debt financing with the equity finance. What is the benefit of debt financing? What is the benefit of equity financing? And what is the optimal capital structure? Like the how much debt and how much equity in your company to make a very better or the make a optimal capital structure for the finance. After that, we are raising the capital raising process. What is the capital raising process? How to raise the capital, whether it is a debt, whether it is a equity, or whether it is a leverage buyout. After that, in the fifth video, we explore the various career paths in the corporate finance, like if like the whether this is the investment banking, FNPA, or analyst and treasury and private equity or the venture capitalist. So let's deep dive into this course and start with this. So first, introduction. What is corporate finance? So the main purpose of the corporate finance is to maximize the value of business. Like if today your business is like the 100 crore, valuation of the business आपकी आज है 100 crores की, but आप implement कर रहे हो, आप expand करने का plan कर रहे हो, we have to expand into a market, we have to plan to expand into a real stage, or we have to plan to expand like the bigger than our competitor. So basically corporate finance मदद क्या करता है कि आपका मेन पर्पस क्या है कैपिटल फाइनेंसिंग का, किस चीज़ के लिए आपको कैपिटल फाइनेंसिंग चाहिए। अगर आपका मोटिव अच्छा है तो आपको कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी, प्लस वो मैक्सिमाइज करेगी आपके बिजनेस वैल्यू ऑफ बिजनेस को। अगर आपके बिजनेस में पैसा आएगा तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज होगी। और प्लस साथ में द कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नॉट लिमिटेड टू रेजिंग द फंड्स, दिस इज एक्सपेंड away from them. This will give you planning, how to better plan your business, implementing that planning and executing the best strategy and resources. बेसिकली प्लान करना कि कैसे हम एक अच्छे बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी जो हमारे प्लानिंग स्टेज में आनी चाहिए, उस स्ट्रेटजीज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना, प्लस लास्ट में उनके बेस्ट स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज को कंपेयर करके देखना कि एक्चुअल में हमने ये चीज़ प्लानिंग में इम्प्लीमेंट की थी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट किया था, उसके रिजल्ट हमें एज पर आवर कॉम्पिटिटिव और एज पर आवर एग्जीक्यूशन मिले हैं या नहीं। सो बेसिकली इसकी 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है डिसाइड इन विच प्रोजेक्ट और बिजनेस वी शुड इन्वेस्ट, कि हमें किस प्रोजेक्ट या किस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक सपोज अगर आज की बात करूं तो आज हमारे लिए बेस्ट सेक्टर है डेटा साइंस, हेल्थ केयर एंड डीप टेक और इंश्योरेंस सेक्टर। सो इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिले। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्टर आज बूम पे चल रहा है, कौन से सेक्टर की केगर सबसे ज़्यादा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, वो सेक्टर ज़्यादा बूम करेगा आगे आने वाले 5 या 10 साल में। सो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बेस्ट ROI लेने के लिए, रेट ऑफ इन्वेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फाइनेंसिंग। अब हमने सेक्टर डिसाइड कर लिया हमें किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें आगे ये चीज़ देखनी है कि पैसा कहाँ से आएगा। लाइक आइदर वी शुड गो फॉर अ डेट और आइदर वी शुड गो फॉर अ इक्विटी। और इक्विटी में हम कहाँ जाए, बेसिकली हम पीज के पास जाना चाहिए, वीसीज के पास जाना चाहिए, कहाँ जाए इक्विटी में। सो बेसिकली आपको जो कैपिटल फाइनेंसिंग है इस चीज़ के बारे में बताता है कि सोर्स ऑफ द बिजनेस, सोर्स ऑफ द फंडिंग आपका कहाँ से आएगा। आपको डेट के लिए जाना चाहिए या इक्विटी के लिए जाना चाहिए। अगर डेट के लिए मेरे को जाना है तो बेसिकली मैं बैंक्स के पास जाऊँगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊँगा। अगर मेरे को इक्विटी फंडिंग के लिए जाना है तो पीईज के पास जाऊँगा या वेंचर कैपिटल्स के पास जाऊँगा। एंड अब थर्ड स्टेज एक न्यू इनोवेटिव फंडिंग आई है, उसको बोलते हैं वेंचर डेट। वेंचर डेट इज समथिंग जो वेंचर कैपिटलिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ डेट। आपके बिजनेस का थोड़ा स्टेक लिया जाएगा और आपको एज अ डेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, प्लस वो आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल और हाउ टू इम्प्लीमेंट द बेटर स्ट्रेटजीज और नॉट। अब
आखिरी वाला इसमें पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट इज डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। जो मेरा मैंने बिजनेस डिसाइड कर लिया, पैसा ले लिया, पैसा बिजनेस में लगा दिया, अब मेरे रिटर्न आए लास्ट में, तो उनको कितना डिविडेंड देना है मेरे को और कितना रिटर्न ऑन कैपिटल देना है। तो बेसिकली ये चीज़ भी कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसाइड होती है कि कितना मैं अपना पैसा शेयर होल्डर्स को बांटूं, कितना मैं रिटर्न ऑन कैपिटल प्रमोटर्स को दूं, और कितना मैं अपने बिजनेस पे रखूं उसको आगे एक्सपेंड करने के लिए। सो बेसिकली ये 3 स्टेज होती हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो हमें डिसाइड करनी पड़ती है। So next we are just going to main player of primary market. So प्राइमरी मार्केट के मेन प्लेयर्स कौन से होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। तो सबसे पहले आएंगे हमारे कॉरपोरेशंस, जिनको बेसिकली पैसा चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पी या वीसीज जो पैसा दिला देते हैं, जो पैसा देते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर इनके बीच में क्या करते हैं, जस्ट सी दिस कर्सर। इन्वेस्टमेंट बैंकर इनके बीच में एज ए मीडिएटर का काम करते हैं। लाइक दिस इज द पी, दिस इज द कार्लाइल ग्रुप। कार्लाइल ग्रुप इज द वेरी बिगेस्ट फंड, इज द वेरी बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड। सो दिस इज द कार्लाइल ग्रुप। जो कार्लाइल ग्रुप इन्वेस्ट करना चाहता है एडटेक में, बेसिकली एडटेक के किस स्टार्टअप में, बायजूस में इन्वेस्ट करना है उसको। तो बेसिकली ये क्या होगा, कार्लाइल ग्रुप को इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ये दोनों पहुंचेंगे कैसे। जिसको पैसा चाहिए बायजूस, उसको भी नहीं पता कार्लाइल ग्रुप फंडिंग प्रोवाइड करता है, और कार्लाइल ग्रुप को भी नहीं पता कि कौन सा इन्वेस्टर्स है या कौन सा स्टार्टअप है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और जिसकी केकर काफ़ी हाई है, जिसके आगे काफ़ी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बीच में इन्वेस्टर, तो इन इन दोनों कड़ियों को जोड़ने के लिए बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर आएगा। बैंक्स क्या करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर द वेरी बिग बैंक्स लाइक द मॉर्गन स्टैनली और द जेपी मॉर्गन। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, बायर को सेलर से मिलवाना, उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बनना, और वो दोनों, जिसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसको पैसा मिल जाएगा, जिसको फंडिंग इन्वेस्ट करनी है, जिसको आरओ चाहिए, वो उसको अपना आरओआई मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली इसमें बीच में मीडिएटर का काम करता है, कि इन दोनों को मिलवाने का काम करता है। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स से बड़े बड़े बेसिकली एचएनआईज होते हैं। एचएनआईज बोलते हैं हाई नेट इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, लाइक द रतन टाटा और द अजीम प्रेम जी एंड द बिल गेट्स, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है और वो उस पैसे में रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो ये एचएनआईज पैसा देते हैं इस फंड को। लाइक सपोज इन तीनों ने 100-100 करोड़ रुपए डाले इस फंड में, 300 करोड़, और इनको एक साल का 20% रिटर्न चाहिए। तो ये जो कार्लाइल ग्रुप है या जो ये यहाँ पे सीडीसी ग्रुप है, ये पैसे डालेगा बायजूस में। अगर बायजूस से उसको 30% का रिटर्न मिलेगा तभी वो पैसा डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको 20% का रिटर्न ऑलरेडी इसको देना है और 10% का अपना प्रॉफिट भी कमाना है, बिकॉज ये लोग पैसे से काम कर रहे हैं और आपको पैसे से ही पैसा कमाना पड़ेगा, ऐसे ही काम करती है। सो ये तो हमारे हो गए प्राइमरी मार्केट के कंपोनेंट्स। अब इसमें बेसिकली प्लेयर्स कॉर्पोरेट फाइनेंस सेकेंडरी मार्केट में क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट में बेसिकली शेयर्स में भी डील करते हैं, शेयर्स, वेंचर्स एक्सेट्रा। सो सेकेंडरी मार्केट में भी सेम हमारे फंड मैनेजर्स होंगे जो अपने फंड्स बेचना चाहते हैं, जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं सेल, ट्रेडिंग या रिसर्च के थ्रू। एंड सेकेंड हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होंगे जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो ये बेसिकली शेयर मार्केट्स में काम करते हैं। वो था प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के लिए और ये था शेयर मार्केट के लिए। सो जिनको अपने शेयर्स बेचने हैं, तो पीईज या वीसीज को जिनको अपने शेयर बेचने हैं, प्लस जिस पी या वीसीज को अपने शेयर खरीदने हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर और बीच में स्टॉक एक्सचेंज इस बीच एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। सो नेक्स्ट इसमें मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कैसे होते हैं। जैसे मैंने बाद में पहले बताया आपको, बेसिकली इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल। हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको बेसिकली जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, लाइक द बिल गेट्स हो गया, रतन टाटा एंड अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी। सो रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं सीधा बायजूस में। लाइक वॉरेन बफेट ने एक टाइम पे पेटीएम में फंडिंग की थी, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो। तो अभी जैसे मार्क जुकरबर्ग ने जियो में पैसा डाला है। सो बेसिकली दीज आर द हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बेसिकली हाई नेट, किसी इंस्टीट्यूशन किसी हाई नेट इन्वेस्टर्स की होती है, लेकिन वो बेसिकली मिल के एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, लाइक द म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड और एंजल इन्वेस्टर्स। लाइक म्यूचुअल फंड
है हमारे पास एक 500 करोड़ का म्यूचुअल फंड है जिसमें 5,000 लोगों का पैसा है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, उसको एक म्यूचुअल फंड लगा लिया, लेकिन वो लोगों को रिटर्न देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को 10%, और म्यूचुअल फंड को अपना प्रॉफिट भी निकालने के लिए उस पर 15% रिटर्न कमानी पड़ेगी। तो वही म्यूचुअल फंड किसी स्टार्टअप में पैसा लगा देगा, तो उससे अपना वो 15% कमा के 10% अपने इन्वेस्टर्स को दे देगा और 5% अपने पास खुद रख लेगा। सो दिस इज द बेसिकली वर्क ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। पीज पेंशन फंड्स क्या करते हैं, पेंशन फंड्स का भी सेम यही काम होता है कि पेंशन प्लान के थ्रू उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया 10 या 15 साल के लिए पैसा, और उनको 15 साल के बाद 20% रिटर्न चाहिए अपने पैसे पे, या 15% रिटर्न चाहिए, या 30% रिटर्न चाहिए। फिर वो अपना पैसा निकाल के बेसिकली पेंशन स्कीम में डाल देंगे या फिर लोगों को देंगे मंथली वाइज। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होती है, दे आर वेरी बिग इन्वेस्टर्स। ये बेसिकली पैसा लगाते हैं बड़ी बड़ी मैच्योर कंपनीज में। ये छोटे स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाते, मैच्योर कंपनी में उनको एक्सपेंड करने के लिए पैसा लगाते हैं। जैसे लाइक ब्लैकस्टोन ग्रुप है, ब्लैकस्टोन ग्रुप बेसिकली पैसा लगाता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, हीरा नंदानी और इन प्रॉपर्टीज़ में उसमें पैसे लगाए हैं 247 पार्क जो अशोक बिनियानी के हैं। सो उसमें पैसा लगाते हैं, और मैच्योर कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज या डीप टेक वगैरह में जो कंपनी पहले से मैच्योर है और वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली छोटी लेवल की फंडिंग करते हैं, लाइक द सीरीज ए फंडिंग या सीरीज बी फंडिंग। बेसिकली ये क्या है, स्टार्टअप से पैसा लगाते हैं। स्टार्टअप्स में जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं इनकी बेसिकली टिकट साइज मतलब ये कितना पैसा लगाते हैं, वो 5 मिलियन से लेके 25 मिलियन तक का होता है। और उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे सीड और एंजल इन्वेस्टर, जो एंजल इन्वेस्टर लाइक द सचिन मित्तल फ्लिपकार्ट वाला, जो उसने फ्लिपकार्ट अभी बेच के जो एंजल इन्वेस्टर बन गया, या काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो सीड फंडिंग के लिए पैसा देते हैं कि स्टार्टअप को शुरू में ग्रो करने के लिए, इनिशियल अपने रिसोर्सेज एस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्टअप को पैसा देते हैं, वो बेसिकली सीड इन्वेस्टर्स होते हैं। सो कॉरपोरेशन में क्या होते हैं जो बेसिकली उसमें डील करते हैं, कौन कौन लोग इनसे पैसा लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में आती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वाले पैसा लेते हैं अगर किसी को अपने शेयर्स खरीदने हैं या शेयर मार्केट में लिस्ट कराने हैं या शेयर्स बेचने हैं, तो पीईज और वीसीज काफ़ी बड़े लेवल पे पैसा डालते हैं उसमें, 100-200 करोड़, जिससे मार्केट पूरी फ्लक्चुएट हो जाती है। तो पीईज और वीसीज इसमें पैसा डालते हैं पब्लिक। सेकेंड है प्राइवेट। प्राइवेट में बेसिकली हमारी कंपनीज होगी, या जो कंपनीज है किसी छोटे इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप्स हो गए या प्राइवेट ओन कंपनीज होगी, उनमें ये लोग पैसा डालते हैं। बेसिकली दीज आर द प्राइवेट कंपनीज। ट्रांजेक्शन्स इसमें क्या क्या होती हैं, बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या ट्रांजेक्शन होती है। सबसे पहले आईपीओ। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या कॉर्पोरेट फाइनेंस, आईपीओ इज़ द मेन पार्ट। अगर आपकी कोई भी कंपनी लिस्टेड होने जा रही है या किसी भी कंपनी के लिए आपको लिस्टिंग करानी है, और लिस्टिंग की प्रोसेस से पहले जो आईपीओ है, आईपीओ की जितनी प्रोसेस होती है आईपीओ के लिए कंपनी को तैयार करना, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको आईपीओ के लिए रेडी करता है। जो जो लीगल आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो जो कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे सेबी के अंडर, वो सारे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स मिलकर करते हैं। फॉलो ऑन ऑफरिंग बेसिकली होती है अगर आपने कोई शेयर अंडर राइट किया, अंडर राइटिंग किसी कंपनी ने शेयर्स की थी, लेकिन उसके शेयर लाइक 1 लाख शेयर्स की अंडर राइटिंग की थी और 90,000 ही बिक पाए, जो 10,000 बचे हुए शेयर्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट बैंक अपने बिहाफ पे खरीद लेगा। फॉलो ऑफरिंग बेसिकली वो होती है कि फॉलो अप करके शेयर्स का ऑफर देना। प्राइवेट प्लेसमेंट से होती है कि शेयर्स जैसे किसी कंपनी ने शेयर्स इन्वेस्ट किए, वो किसी पब्लिक को शेयर्स इशू ना करना, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को सीधे दे दिए, लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू उसने 100 करोड़ के शेयर पूरे खरीद लिए, वो पब्लिक को इशू नहीं किए गए, तो प्राइवेटली उसने सारे शेयर्स प्लेस कर लिए, प्राइवेटली उसने सारे शेयर्स हेल्ड कर लिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऐसे काम करती है। मर्जर्स एक्विजिशंस ऐसे काम करता है, बेसिकली मर्जर्स एक्विजिशंस पे अगर किसी कंपनी को मर्ज होना है, लाइक अभी टाटा डोकोमो प्लस आइडिया का मर्जर हुआ था, तो वो दो कंपनीज हैं आपस में एक बनना चाहती हैं, मर्ज होना चाहती हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही बिजनेस में, या उनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, या उनको टेक्नोलॉजी कोई ऐसी लग रही है जो मर्ज करके ये वो अफोर्ड कर सकते हैं या इनोवेटिव काम कर सकते हैं, तो बेसिकली मर्जर एक्विजिशंस पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और डील एडवाइजर का काम करते हैं। पूरी जो इसमें प्रोसेस होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना या इन्वेस्टर डेक बनाना या फिर टर्म शीट फाइल करना, पिच डेक्स बनाना, और जितनी भी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होगी वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। लेवरेज बाय आउट बेसिकली कैसे काम करता है, सपोज इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको एक घर खरीदना है, तो लेवरेज बाय आउट में बेसिकली ये होता है कि अगर मेरा घर 20 लाख रुपए का है, तो उसमें मैं 5 लाख तो अपना कैश यूज़ करूंगा और 15 लाख रुपए की डेट यूज़ करूंगा। मतलब हमने एक चीज़ को लेवर कर दिया। लेवर का मतलब होता है फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, कि
ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट पे किसी चीज़ को खरीदना। सो बेसिकली इसमें क्या, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये आता है कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट तो हर महीने देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो कैश रिटेंशन रेशियो ना आपके पास सेम रहेगी। आपका कैश आपके पास से जाएगा नहीं, आपके पास कैश की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपके पास लेवरेज बर्डन काफ़ी आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रियल एस्टेट में। लाइक अगर आपको घर खरीदना है तो आपको लोन पे आपको 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 15 लाख रुपए का आप लोन करा सकते हो। तो ये चीज़ लेवरेज बाय आउट एलबीओज यूज़ होते हैं बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा। डाइवर्सिट्यूड बेसिकली ये काम करता है कि अगर आपका बैंकरप्टी कोई कंपनी चल रही है या किसी कंपनी पे केस हो रखा है या कोई भी ऑफरिंग है, तो उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर कंप्लाइंसेस या नेगोशिएशन के थ्रू बिकवा देते हैं। तो डाइवर्सिटी ऐसे काम करती है। सो व्हाट इज एमएनए? मर्जर एक्विजिशंस क्या होता है? सबसे पहले तो मर्जर एक्विजिशन, जैसा हमने पीछे एक्सप्लेन किया, मर्जर एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ द कंपनीज बाइंग, सेलिंग एंड कंबाइनिंग द बिजनेस। बेसिकली जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से और उसके लिए पैसे देते हैं, इसी तरह मर्जर एक्विजिशंस में कंपनी को बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, प्लस उनको कंबाइन किया जाता है। लाइक अगर कोई कंपनी है एबीसी, उसने एक्स वाई जेड को खरीद लिया पूरी तरह, तो उसने पूरी तरह बाय कर लिया। लेकिन कंबाइन में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है एबीसी और एक्स वाई जेड, दोनों आपस में कंबाइन हो गए और उनका नया नाम हो गया ए बी सी एक्स वाई लिमिटेड। सो दिस इज द कंबाइनिंग ऑफ द बिजनेस। बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है इसका कॉस्ट सेविंग। अगर पहले एक चीज़, एक प्लांट को एक आदमी मिलकर यूज़ कर रहा था, लेकिन अब उसको दो आदमी मिलकर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट सेविंग होगी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी रेंट कॉस्ट कम आ रही है, लेबर कॉस्ट कम आ रही है, प्लस आपकी सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि दोनों कंपनी से कस्टमर एक कंपनी के पास आ गए। रेवेन्यू एनहेंसमेंट ऐसे होती है, बेसिकली वही है, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और कॉस्ट कम आ रही है, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू एनहेंसमेंट हो जाएगा। मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो जाएगा। लाइक पहले आइडिया के 50 लाख कस्टमर्स थे और डोकोमो के 50 लाख फिर से आ गए, तो आप दोनों का मिलकर मार्केट शेयर बढ़ गया, आपके 1 करोड़ कस्टमर्स हो गए टोटल में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके एनहेंस हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा आ रहा है काफ़ी सारा, तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज एनहेंस हो गए इससे। क्यों हो गई? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपने बेसिकली आपका खर्चा कम हो रहा है, प्लस आपको अगर कोई डेट रेज करनी है या आपको कोई कैपिटल उठानी है, तो आपको आपकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि दो कंपनीज के रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे आपकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाएगी। ड्रॉबैक्स क्या है? ओवर पेइंग करना पड़ता है। मतलब शुरू में मर्जर से एक्विजिशन के टाइम पर अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो हमें उसको उसकी गुडविल के पैसे पे करने पड़ेंगे या उसके लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा उसको अपने अंदर मर्ज करने के लिए। लार्ज एक्सपेंसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, मतलब शुरू में काफ़ी आपका लार्ज एक्सपेंस होगा, लेकिन आपके रिटर्न्स हैं वो टाइम के साथ साथ आते रहेंगे, और अगर कंपनी कल को फेल होगी तो रिटर्न्स आने भी मतलब मुश्किल है। नेगेटिव रिएक्शन पड़ता है मर्जर एक्विजिशन में। अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, तो बेसिकली ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लोग सही से काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये लोग मर्ज हो रहे हैं, या इन लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, कंपनी डूबने वाली है, इस वजह से इन लोगों ने मर्ज का ऑप्शन देखा। एम एन ई की वजह की प्रोसेस क्या काम करती है? एम एन ई की प्रोसेस ऐसे होती है, सबसे पहले एक्विजिशन स्ट्रेटजी। अगर सपोज आपको मेरी कंपनी एक्स है और उसको वाई में मर्ज होना है, तो सबसे पहले दोनों एक्स और वाई कंपनियां अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाएंगी। तो एक्विजिशन स्ट्रेटजी बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर उनको एक्विजिशन स्ट्रेटजी बना के देगा। लाइक इस मार्केट की केगर क्या चल रही है, इस मार्केट की क्या रेट है, आपको मर्जर होने में इतना फ़ायदा है या ये नुकसान है, ये कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें। एक्विजिशन का क्राइटेरिया क्या है? लाइक आपको मर्ज होने के लिए एक्स नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ आपके होने चाहिए, या एक्स नंबर ऑफ द कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मर्ज हो सकते हो। उसके बाद सर्च करते हैं टारगेट को। लाइक हमारे पास एक्स कंपनी आई, लेकिन हमें उसकी सेम कंपनी ढूंढनी है कि कौन से टारगेट कंपनी से जो उसको खरीद सकते हैं, कौन सी टारगेट कंपनी है जो हम उसको बेच सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई फूड एंड बेवरेज की कंपनी है, तो हम बेसिकली सर्च करेंगे कि जो फूड एंड बेवरेज है, आईटीसी है या हिंदुस्तान यूनिलीवर से इस कंपनी को खरीद सकता है या नहीं, इस कंपनी की वैल्यूएशन सही है या नहीं। अप्रोचिंग टारगेट, अगर हमने एक बार सर्च कर दिया, हमारे पास ये लीड आ गई, तो बेसिकली हमारे पास ये लीड आ गई कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्स कंपनी को खरीदने के लिए कैपेबल है, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को अप्रोच करेंगे, चीज़ों के थ्रू अप्रोच करेंगे, मेल के थ्रू या बाय द कम्युनिकेशन या बाय द आवर लीड्स, कि आप इस आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको खरीद सकते हो।
उसके बाद हम डेटा एंड डिटेल वैल्यूएशन, उसके बाद हमारे पास एक्स कंपनी है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिखाने के लिए हम उस कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, प्लस डेटा देखेंगे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन, सपोज हम उनको बताएंगे कि इस कंपनी की आज की वैल्यूएशन एसेट एंड लाइबिलिटीज़ और कंप्लीट सोर्सेज मिला के 100 करोड़ रुपए है, तो आप इसको 120 करोड़ 130 करोड़ में खरीद सकते हो। बेसिकली 20 या 30 करोड़ आपको गुडविल के देने पड़ते हैं। नेगोशिएशंस होंगी, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर 120 का 110 बोल रहा है तो हम उसको 115 पे राज़ी करेंगे या 110 पे राज़ी करेंगे, तो बेसिकली प्राइस के बीच में नेगोशिएशन होगी। हम 130 बोल रहे हैं, वो 120 बोल रहा है, या हम 110 बोल रहे हैं, वो 110 15 बोल रहे हैं, तो ये चीज़। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होती है बेसिकली कि हर अगर हमने 120 करोड़ वैल्यूएशन बोली है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उस चीज़ को चेक कराएगा कि 120 करोड़ वैल्यूएशन है किस बेसिस पे बोल रहे हैं, लाइक इनके एसेट्स या रिसोर्सेज इतने हैं, इनके फाइनेंशियल नंबर ऐसे हैं, या ऐसे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हमें पूरी डी के थ्रू पता लगती है। लाइक इट्स लाइक द डीपर साइड ऑफ द इंटरनल ऑडिट, काफ़ी डीप में किया जाता है, इंटरनल ऑडिट की तरह होता है लेकिन काफ़ी डीप में होता है ये चीज़। हर एक नंबर, हर एक आइटम को आप बिल्कुल ठोक बजा के देखते हो कि ये नंबर सही है या नहीं। उसके बाद परचेज एंड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, लाइक किसी कंपनी से सेल कर लिया तो क्या कितना पैसा आएगा, क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें। नाइन्थ के बाद होती है फाइनेंसिंग, बेसिकली जिस कंपनी ने एक्स कंपनी को खरीदा है तो वो उसको पैसा प्रोवाइड करेगी, लाइक 120 करोड़ में खरीदा तो 120 करोड़ उसको दे देगी। इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लीगल टर्म शीट फाइल करेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा दोनों कंपनीज के, दोनों कंपनी के बेसिकली नाम एक्सचेंज कर देंगे, कंपनी एक्स एंड वाई या एक्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर बन जाएगी, या बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर अपना इस चीज़ को पब्लिक कर देगी कि हमने इस कंपनी को खरीद लिया है। सो नेक्स्ट इज द स्ट्रेटजिकल एंड द फाइनेंशियल बायर। स्ट्रेटजिकल और फाइनेंशियल बायर बेसिकली होते क्या हैं? स्ट्रेटजिकल बायर्स होते हैं बेसिकली जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एफ एम सी जीज में है, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है, कोई छोटी कंपनी है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लाइक कोई एक्स कंपनी है जो काफ़ी अच्छे डिटर्जेंट पाउडर बना रही है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बेसिकली क्या करेगा, उस बिज़नेस को खरीद लेगा। लाइक बेसिकली इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी था जो जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीदा था। लाइक जोमेटो द स्ट्रेटेजिक बायर फॉर द उबर ईट्स, जोमेटो का बिजनेस भी फूड सेम फूड चेन का है और डिलीवरी का है, तो उबर ईट्स का बिजनेस भी सेम फूड डिलीवरी का है, तो जोमेटो इज द स्ट्रेटेजिक बायर ऑफ द उबर ईट्स। ऑपरेटिंग बिजनेसेस बेसिकली जो चल रहे हैं वो खरीद लेते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सपेंसेस मैंने उस बिजनेस को खरीद लिया। लाइक जोमेटो ने अगर उबर ईट्स को एक्वायर कर लिया तो जोमेटो का सारा कस्टमर बेस प्लस सारे रिसोर्सेज या प्लस नाम, सॉरी, उबर ईट्स का सारा कस्टमर रिसोर्सेज सारे नाम जोमेटो के पास आ गए। फाइनेंशियल बायर बेसिकली क्या होते हैं? फाइनेंशियल बायर्स बेसिकली किसी बिजनेस के पर्पज से नहीं खरीदते, वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म है, अगर किसी कंपनी को खरीदा है, किसी कंपनी को पैसा लगाया है, तो आज उस कंपनी को खरीदा है उसने 100 करोड़ में, लेकिन वो 2 साल के बाद उस कंपनी को 200 करोड़ में बेच देगा और उसने उस पर 2% उस पर 2 टाइम्स रिटर्न कमा लिया। तो फाइनेंशियल बायर्स बेसिकली पैसे से पैसा कमाने के लिए इस चीज़ को खरीदते हैं, तो वो फाइनेंशियल बायर्स होते हैं। एम की वैल्यूएशन प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली हम वैल्यू बोल तो रहे हैं कि इस कंपनी की 100 करोड़ है या 200 करोड़ है, हम इसको वैल्यू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब एंटरप्राइज वैल्यू की कंपनी की आज की वैल्यू क्या है, आज की टोटल वैल्यू क्या है, बेसिकली उसकी सेल्स की ग्रोथ क्या है, उसके EBITDA मार्जिन क्या है, अपने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या मार्जिन है, कितना कंपनी टैक्स पे कर रही है, कितनी उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितना वो पैसा अपनी वर्किंग कैपिटल लगा रही है, कितना उसको चाहिए, कितने के उसने आज तक कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, तो उसी के बेसिस पे हम सिनर्जीज निकालते हैं। बेसिकली ये निकालते हैं कि उसकी वैल्यूज़ कितनी है या कितनी सिनर्जी पे वो अपनी काम कर रही है, लाइक उसका सेल का वॉल्यूम और प्राइस क्या है, EBITDA मार्जिन में कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके, कितने प्रोडक्ट से वो रेवेन्यू आ रही है, सिंगल प्रोडक्ट से आ रही है, ओवरहेड्स उसके टाइम के साथ रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं, या ऑपरेटिंग टैक्स है उसको टैक्स के एफिशिएंसी या टैक्स में लॉसेज हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उसका वेंडर से रिलेशनशिप है, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैसे एफिशिएंसीज हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ कैपिटल फाइनेंसिंग? बेसिकली हमने मर्जर एक्विजिशन का कर लिया, अब इसमें कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है, कैपिटल फाइनेंसिंग का बिजनेस कैसे काम करता है? सो अगेन वही फर्स्ट स्लाइड, कैपिटल फाइनेंसिंग इज a पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो लेट्स मूव इन। कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है? बेसिकली नाम से पता चल रहा है कैपिटल को फाइनेंस कर देना, कैपिटल आना और उस कैपिटल के बदले हमें पैसा मिल रहा है, तो एनी टाइप ऑफ द फंडिंग, वेदर इट इज़ डेट और वेदर इट इज इक्विटी, डेट इज़ यूज जो यूज होती है फाइनेंसिंग करने में, परचेज ऑफ द एसेट और द प्रोजेक्ट। लाइक अगर हमें कोई हाईवे बनाना है,
गवर्नमेंट एनएचआई के थ्रू हाईवे बना रही है और उसको उसके लिए कैपिटल फाइनेंसिंग करानी है। तो हाईवे बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ से पैसा उठाएगी? बैंक से। बैंक से पैसा लेगी, उसने डेट लिया बैंक से 100 करोड़ का डेट लिया जिससे हाईवे बना के वो उसका पैसा वापस कर देगी। या वो पीईज के पास जाएगी, प्राइवेट इक्विटीज़ के पास गए कि हमें आपको इस कंपनी में 10% स्टेक देंगे, आप इस कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, आप में 100 करोड़ रुपए दे दो। या वो वीसीज के पास जाएगी छोटे अमाउंट्स के लिए। तो बेसिकली ये, और दो तरह की फाइनेंसिंग होती है, या तो आपने इक्विटी ली प्राइवेट इक्विटी फर्म से, या वेंचर कैपिटलिस्ट है, या फिर आपने डेट लिया, आपने बैंक से डेट लिया और फिर फिक्स इंटरेस्ट ऑफ लोन दे रहे हो, फिक्स इंटरेस्ट ऑफ लोन पे फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो। और इक्विटी में बेसिकली आप उसको स्टेक दे रहे हो पैसे का। सो कैपिटल फाइनेंसिंग से क्या क्या इंक्रीज होता है? कैपिटल फाइनेंसिंग हमारी इंक्रीज करेगी लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि पैसा आ रहा है तो डेट तो काफ़ी बढ़ेगा उससे। और इक्विटी अगर ली है, इक्विटी में स्टेक देना पड़ेगा एक तरह से। वो हमारी क्या होगी, बेसिकली पैसा हम लिक्विडेट कर रहे हैं तो उस चीज़ में हमें इक्विटी में भी उसको स्टेक देना पड़ेगा। और डेट में भी हमारे बर्डन आ गया फिक्स इंटरेस्ट रेट्स का, तो वो चीज़ भी बढ़ती है। लेकिन एसेट्स भी इसके साथ बढ़ती हैं, अगर हमने उनसे पैसा लिया है तो हमारी एसेट भी साथ में इंक्रीज हो रही है। बिजनेस साइकिल बेसिकली काम कैसे करता है? ये एक मेन बिजनेस साइकिल होता है। अगर आपने शुरू में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो यहाँ पे ज़ीरो स्टेज पे होगा। वो शुरू शुरू में उस प्रोडक्ट को 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, उसकी ग्रोथ आएगी बिल्कुल स्लो लेवल पे, फिर वो बढ़ना शुरू होगा, मार्केट में उसके बारे में पता चलेगा, उसमें पैसा डालेंगे हम। पैसा बेसिकली हमने अगर फूड एंड बेवरेजेस में डाला या किसी सपोज हमने डिटर्जेंट पाउडर में डाला, तो उसकी मार्केटिंग में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने उसकी मार्केटिंग की बाय डिजिटल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, तो उसके थ्रू उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, काफ़ी उसकी ग्रोथ गई। उसके बाद एक स्टेज आएगी जिस पर शेक आउट हो जाएगा, मतलब शेक आउट स्टेज पे वो बिल्कुल लेवरेज आ गया, स्लो रेट से बढ़ने लगा। उसके बाद मैच्योरिटी हुई उसकी, और मैच्योर हो गया उसके बाद वो चीज़ गिरना शुरू कर देगी। लाइक हमने काफ़ी मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर दिया, हमारी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन हमारी सेल्स गिरने लगी है। कस्टमर है वो हमारी प्रोडक्ट लेके बोर हो चुका है, हमें मार्केट में कुछ नया लेके आना पड़ेगा। तो वो टाइम के साथ साथ होता है, बेसिकली उसका टाइम 3 से 5 साल होता है। उसके बाद आपकी सेल्स गिरने लग जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर या एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि कितना हमने एक अमाउंट ऑफ डेट यूज़ किया है या कितना इक्विटी यूज़ किया है अपने कंपनी के ऑपरेशंस को फंड करने के लिए और अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, अपनी एसेट्स में पैसा डालने के लिए। अगर हमें किसी भी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें इफेक्टिव बनाना है तो हमें उसको काफ़ी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। एक फर्म डिसाइड करेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेनी है, ज़्यादा इक्विटी लेनी है, और हम कौन सी इशू कर सकते हैं और कौन से हमें चाहिए। बेसिकली लो लेवरेज कैसे काम करती है? लो लेवरेज का मतलब, लेवरेज होती है फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, कि आप मतलब आप काम करो या ना करो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 2000 की एसेट हैं और उसमें से 200 का डेट है और 1800 की इक्विटी है। इक्विटी हमारी खुद की है, अगर हम पैसा कमाएंगे तो देंगे, अगर नहीं है तो हमें डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन डेट में अगर पैसा कमाएं या ना कमाएं हमें डेट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है लो लेवरेज। प्लस हाई लेवरेज कैसे काम करती है? अगर 2000 करोड़ के एसेट्स है तो 1500 की डेट है और इक्विटी ज़्यादा है, मतलब इस केस में हमारा डेट का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है इक्विटी से। तो इस केस में हमें पैसा डेट का फिक्स देना पड़ेगा, अगर पैसा कमाएं या ना कमाएं हमें पैसा वो डेट का इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे ऊपर खड़ा ही रहेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली काम क्या करता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लाइक नाम से पता चल रहा है वेट। वेट कितना है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोन, लोन का जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो। लाइक हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी ए फर्म एज मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव कॉस्ट। कितना उसके पास डेट है, कितना उसके पास इक्विटी है, एक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? रेट ऑफ द रिटर्न और शेयर होल्डर रिक्वायर फॉर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस। लाइक हमारे किसी शेयर होल्डर ने हमारे बिजनेस में 100 करोड़ डाले और हमारा डिविडेंड रेट है, इक्विटी रेट 10% है, तो हमें अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको प्रॉफिट का 10% या 15% दे देंगे। तो वो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब उसके पैसा डालना है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है प्रॉफिट में से। लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट होता है रेट ऑफ द रिटर्न दैट द लेंडर रिक्वायर गिवन द रिस्क ऑफ बिजनेस। लाइक हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया है लेंडर ने और बेसिकली हमें पैसा दिया गया है, लेकिन हमें उस पर फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, वेदर वी आर अर्निंग मनी और नोट। अगर हम लॉस में भी है तब भी हमें वो पे करना पड़ेगा। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? वो बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका कितना डेट है, कितना आपका पोर्शन इक्विटी का है, और उसी के बेसिस पे हम डेट ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लोएस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, कि आपको कितना प्रॉफिट यूज कितना डेट यूज़ करना चाहिए, कितना इक्विटी यूज़ करना चाहिए। वैक का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? वैक का फॉर्मूला होता है नेट डेट
परसेंटेज ऑफ नेट डेट, लाइक हमारे पास 14% की डेट है, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट हमारी 3.5% है, तो इसका हमारा मोटिव होगा 5.5। अब दूसरा हमारे पास 86 की इक्विटी है, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9% है, तो कंट्रीब्यूशन होगा 7.7, तो हमारा टोटल बैक आ गया 8.2। बेसिकली जितना लो हो डेट के केस में उतना ही बेटर रहता है। कॉमन शेयर जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनमें रिस्क सबसे कम होता है, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, बट पैसे सबसे कम पे करने पड़ते हैं अगर प्रॉफिट ना हो तो। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं प्रेफरेंस शेयर। इसमें बेसिकली इक्विटी से कम रिस्क होता है और पैसे भी इसमें पे करने पड़ते हैं अगर हमारा प्रॉफिट है या नहीं। उसके बाद आता है शेयर होल्डर्स लोन, जो हमने शेयर होल्डर से अपना लोन दिया है, इसमें हमें फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आएगी हमारी सबॉर्डिनेटेड डेट, जो हमने डेट ली है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद आते हैं हमारे सीनियर डेट, जो हमारी कोलेट्रल्स के ऊपर होती है, जो हमने बैंक्स वगैरह से ली है। उसके बाद ये हमारे शेयर्स के पार्ट आ गए। कॉमन शेयर बेसिकली किसको बोलते हैं? कॉमन शेयर्स होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द फर्म की कैपिटल होती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू होती है, और ये प्रपोर्शंस होता है हमारी टोटल रेजिडुअल जो वैल्यू है बिजनेस की, उसका छोटे छोटे प्रपोर्शंस में बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को। और इस पे हमें बेसिकली कॉमन डिविडेंड देना पड़ता है और इसको वोटिंग राइट्स होते हैं। लास्ट लेवल लेवल ऑफ द प्रायोरिटी होती है इनकी पेमेंट करने की, सबकी पेमेंट करने के बाद हम इनकी पेमेंट करते हैं। प्रेफर शेयर्स के क्या, प्रेफर्ड शेयर या प्रेफरेंस शेयर सेम, बेसिकली इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। एक फिक्स डिविडेंड पे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, और एंटी डाइल्यूशन राइट्स, मतलब डाइल्यूट नहीं कर सकते कंपनी को, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। इशू किए जाते हैं मोस्टली कॉस्टली होते हैं कॉमन शेयर से, बिकॉज आपको फिक्स इनकम पे करनी ही पड़नी पड़ेगी अगर आपने प्रॉफिट नहीं भी कमाया तो। और कंपनी बस कैश है और पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व में इनको डालना पड़ेगा, आप इसको अगले साल पेमेंट करोगे। सोर्स ऑफ इक्विटी क्या हो सकते हैं? बेसिकली प्राइवेट मार्केट के 3 सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के थ्रू पैसा उठाया, जिनकी लिमिट बेसिकली 100 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक होती है। उसके बाद वेंचर कैपिटल फर्म्स के थ्रू, जिनकी जो सीड फंडिंग और न्यू बिजनेसेस में पैसे डालते हैं, जिनकी लिमिट 5 मिलियन डॉलर से लेके 25 या 50 मिलियन डॉलर तक होती है। उसके बाद हमारे एंजल इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स। पब्लिक मार्केट के क्या-क्या हैं? सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह, और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और छोटे इन्वेस्टर्स। प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल होते कैसे हैं? बेसिकली प्राइवेट इक्विटी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म मैनेज द फंड्स और द पूल ऑफ द कैपिटल। लाइक प्राइवेट इक्विटी फंड के पास पैसा है, सो एचएनआईज हाई नेट इन्वेस्टर्स ने इसको पैसा दिया, 100 करोड़ रुपए, तो इसके बाद एक पैसे का पूल बन गया जो इन्वेस्ट करता है कंपनीज के अंदर हाइयर रेट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए। लाइक उन लोगों की एक्सपेक्टेशन है 20% और इसको कमाना है 30%, तो स्टार्टअप्स या मैच्योर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा और उनसे रेट ऑफ रिटर्न लेगा। प्राइवेट इक्विटी फंड्स बेसिकली एक लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 से 10 साल के लिए, बेसिकली 5 साल के लिए होता है इनका। और एग्जिट स्ट्रेटजीज होती है इनकी, अगर एक बिजनेस मैच्योर हो गया पूरा तो उसको आईपीओ के लिए लॉन्च कर देंगे, या उसको सेलिंग टू अनदर प्राइवेट इक्विटी फर्म, किसी दूसरी प्राइवेट पीईएस फर्म को बेच देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सीसीडी था, कैफे कॉफी डे। जब केकेआर के पास सीसीडी का शेयर था, तो उन लोगों ने अपना स्टेक निकालने के लिए उसको पीरामल ग्रुप और एसडीएफसी को बेच दिया था। सो प्राइवेट इक्विटी फंड दो कैटेगरीज में स्प्लिट होते हैं। वेंचर कैपिटल फंड, जो टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स में या एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को। इनकी लिमिटेड एक्सेस होती है फाइनेंसिंग की, और काफ़ी छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन एक्सेट्रा। सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? सिकोवा कैपिटल, वाई कॉर्बिनेटर, एंडरसन, होरोविट्स। So, hi guys, today we are starting with the introduction to the investment banking. In this video, we will learn about the what is the investment banking, what are the branches of investment banking, and how investment banking work, what is the actual meaning of investment banking, and what is the career options in investment banking firms. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, या बेसिकली इक्विटी और एमएनए प्रोसेस क्या होती है। आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है। सो फर्स्ट सबसे पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट प्लस बैंकिंग। दिस इज लाइक अ वेरी बिग वर्ड, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ड में। और आप अपने आप को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बोल सकते हो, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एक रिसेप्शन का काम कर रहे हो,
तब भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे डील्स क्लोज करा रहे हो या एज इन्वेस्टमेंट बैंकर काम कर रहे हो, तब भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम कर रहे हो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में ये बात होती है कि आप काम किस स्टेज पे कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करना कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप काम किस स्टेज पे कर रहे हो, आइदर यू आर इन द बैक ऑफिस, आइदर यू आर इन द मिडिल ऑफिस, आइदर यू आर इन द फ्रंट ऑफिस। सो आप किस जगह पे काम कर रहे हो, किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो चीज़ सबसे बड़ी मैटर करती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली होती है, दो वर्ड्स का कोलैबोरेशन देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट गाइस इसमें ये दो वर्ड होते नहीं, इसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होती है, आप शेयर में कोई, आप बेसिकली बैठ के किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या कोई बैंकिंग होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ड बना कैसे? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली क्या होती है, एक डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट सर्व द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को भी सर्व करती है, कॉरपोरेशन को भी सर्व करती है, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी सर्व करती है, बाय प्रोवाइडिंग द अंडर राइटिंग सर्विसेज। लाइक कैपिटल रेज करनी है शेयर्स के थ्रू, तो इन्वेस्टमेंट बैंक कराएगा। मर्जर एक्विजिशन, जो कंपनीज को मर्ज कराना है, कोई गवर्नमेंट कंपनी मर्ज करानी है, गवर्नमेंट को किसी कंपनी को खरीदना है, या किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी को खरीदना है, प्राइवेट प्राइवेट दोनों आपस में खरीदना चाहते हैं, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, बीच में एज ए मीडिएटर का काम करते हैं इन्वेस्टर से बीच में, वो हैव मनी टू इन्वेस्ट, जिसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस कॉरपोरेशंस के बीच में, जो जिनको कैपिटल की ज़रूरत है, जो कैपिटल जिन्हें चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और रन करने के लिए। ये बेसिकली क्या है, एक इन्वेस्टर और एक कॉरपोरेशन दोनों को मिलवाने का काम करते हैं, डेट इज द इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें तीन फंक्शंस होते हैं एज ए कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरह। कैपिटल रेजिंग, सबसे पहली बात कि आपको कैपिटल रेज कराना पड़ेगा, अंडरराइटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, कि मतलब किस प्रोजेक्ट में आपको पैसे डालने चाहिए, कहाँ से आप बेस्ट आरओआई ले सकते हो। लाइक अगर आपको टेक में पैसे डालने हैं, आपको रियल एस्टेट में पैसे डालने हैं, लॉजिस्टिक में डालना है, तो कहाँ से आप 100 रुपये लगा के वहाँ से 1000 रुपये कमा सकते हो। तो दिस इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर। मर्जर एक्विजिशंस, अगर दो फर्म को मर्ज होना है, या दो फर्म एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हो अकेला अकेला, तो वो अलग अलग अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनको इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो काम करते हैं दो फर्म्स को मिलवाने का। आईपीओ एडवाइजरी, अगर किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना है अपना, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करेंगे, वो आईपीओ एडवाइजरी देंगे कि आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए, कैसे आप आईपीओ लेके आ सकते हो, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, कैसे लिस्टिंग करनी चाहिए। तो आईपीओ एडवाइजरीज में इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर सर्विसेज, वो ब्रांचेस थी, अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसके अलावा। सो देयर कैन बी समटाइम कंफ्यूजन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। काफ़ी टाइम हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, कमर्शियल बैंकिंग की तरह ही है क्या, ये लोग भी लोगों से पैसे लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं क्या, इनमें हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, या इनमें हम बैंक्स की तरह लॉकर खोल सकते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ द सर्विसेज ले सकते हैं। सो आंसर इज नो, इनमें ये सब हम काम नहीं कर सकते। बट ये क्या करते हैं, जो एक फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, वो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी अंडरराइटिंग सर्विसेज आ गई, जिसमें एमएनए आ गया, मर्जर एक्विजिशंस आ गया, जिसमें सेल्स और ट्रेडिंग आ गया, आप शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हो, सेल्स में करना चाहते हो, वो चीज़। उसके बाद आपकी इक्विटी रिसर्च आ गई, या एसेट मैनेजमेंट हो गया, या कमर्शियल बैंकिंग होगी, उसके थ्रू आप करा सकते हो। या फिर आपकी रिटेल बैंकिंग आ गई, या रिटेल बैंकिंग आपको करनी है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन बेसिकली प्रोवाइड करती है अंडर राइटिंग एंड एमएनए एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें सबसे पहले आपकी आ गई एमएनए एडवाइजरी सर्विसेज, फिर फंड रेज करना है, आपको कितना फंड रेज करना है, किसी को कैपिटल रिक्वायरमेंट है या स्टार्टअप्स को फंड रेज करना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइस करती है। इक्विटी रिसर्च करानी है, आपको कौन से शेयर में पैसा डालना है। मैं यहाँ पे छोटे शेयर्स की बात नहीं कर रहा, बेसिकली किसी पीई फर्म को 100 करोड़ रुपए डालने हैं किसी रियल एस्टेट के शेयर में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्विटी रिसर्च के थ्रू आपको ये बताएगी कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है, प्लस कौन से कंपनी के शेयर्स आपके लिए बेस्ट हैं, जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। सेल्स एंड ट्रेडिंग में बेसिकली आपको डेरिवेटिव्स में डील करना है, या फ्यूचर ऑप्शंस में डील करना है, वो ट्रेडिंग करता है इन्वेस्टमेंट बैंक। एसेट मैनेजमेंट, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो मैनेज कराना है, या अपने एसेट्स मैनेज करनी है, या आपके पास पैसा है उसको आप बेटर रिटर्न्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो, तो एसेट मैनेजमेंट करता है। आईपीओ एडवाइजरी, आपको कैसा आईपीओ लेके आना चाहिए, क्या क्या कंप्लायंसेस करनी चाहिए, वो चीज़ें करता है। प्लस कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग में आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बाकी सर्विसेज कमर्शियल बैंक से रिलेटेड थोड़ी बहुत ले सकते हो उसमें। प्लस रिटेल बैंकिंग, जो रिटेल बैंकिंग छोटे सेक्टर्स की बैंकिंग होगी, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं। बेसिकली अब हम देखते हैं आईपीओ एडवाइजरी क्या होती है। आईपीओ एडवाइजरी हम जो बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आईपीओ एडवाइजरी में हम काम कैसे करते हैं।
आईपीओ एडवाइजरी बेसिकली एक प्रोसेस होती है जहाँ पे जो कंपनी पहले अनलिस्टेड थी, प्रीवियस अनलिस्टेड कंपनी, जो सेल करती है अपने नए या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और ऑफर करती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम। लाइक मेरी कोई कंपनी थी, सपोज मैंने जोमेटो में लिस्ट होने के लिए जा रही है, लेकिन वो पहले अनलिस्टेड थी। उसने अब क्या किया, पब्लिक की कैपिटल लेना चाहती है, तो उसने अपना सारा पैसा छोटे छोटे ट्रांची, छोटे छोटे प्रपोर्शन से बांट दिया और वो अब पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। तो उस आईपीओ वो होती है। तो आईपीओ से पहले, प्रायर टू द आईपीओ, ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी प्राइवेट। आईपीओ से पहले कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी होती है, बिकॉज उसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ, सारा पैसा खुद का प्राइवेट ओन्ड है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें काफ़ी स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन द सेंस आप बोल सकते हो उसके प्रमोटर्स हो गए, उसके इन्वेस्टर्स हो गए। और वो एक लिमिटेड होती है, छोटे लिमिटेड होते हैं इन्वेस्टर्स तक, लाइक द एंजल इन्वेस्टर और द वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड द एचएनआई, जो बिल गेट्स, रतन टाटा, लाइक रतन टाटा ने अभी पैसा डाला था किसी इन्वेस्टर, किसी इन्वेस्टमेंट ऐप में, ग्रो ऐप में, या अभी वॉरेन बफेट ने पैसा डाला पेटीएम में। तो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स या अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, लाइक फाउंडर फैमिलीज होगी, फाउंडर्स हो गए, या उनकी फैमिली ने पैसा डाल दिया, दोस्तों से पैसा लेके डाल दिया, तो उस तरह। आफ्टर एन आईपीओ, आईपीओ के बाद जो इश्यूइंग कंपनी है वो पब्लिकली बन जाती है। आईपीओ के बाद जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि पब्लिक का पैसा उस चीज में आ गया, पब्लिक ने उस चीज में पैसा डाल के शेयर ले लिया, तो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। लाइक आपका अगर पैसा फ्लोट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस हिसाब से आपको स्टॉक एक्सचेंज पे उस चीज के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो आईपीओ इज कॉमनली कहा जाता है गोइंग पब्लिक। आईपीओ को बोलते हैं कि पब्लिक के अंदर जाना, मतलब गोइंग पब्लिक, पब्लिक में चला गया। आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम अंडरराइटर सेलेक्ट करते हैं कि किसको हमें शेयर देने हैं, जो हमारे शेयर बिकवाएगा। ड्यू डिलिजेंस देखते हैं, जो हम एक्चुअल में जो अपने फाइनेंशियल अकाउंट दिखा रहे हैं या कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ या 2000 करोड़ बता रहे हैं, तो वो एक्चुअल में है भी या नहीं, उस चीज़ की डीडी करते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह देखा जाता है, हर एक डॉक्यूमेंट की ऑडिट की जाती है, इंटरनल ऑडिट काफ़ी डीप में, कि ये जो नंबर है वो सही है या गलत है। प्राइसिंग देखी जाती है कि आईपीओ की जो प्राइसिंग है वो एज पर द डॉक्यूमेंटेशन सही है, ओवर प्राइसिंग तो नहीं है, अंडर प्राइसिंग तो नहीं है। स्टेबलाइजेशन देखा जाता है कि ये कितनी स्टेबल होगी कंपनी, या स्टेबल कितना आईपीओ होगा आगे चल के, और कितना हम इसको पैसा कमा पाएंगे। ट्रांजिशन देखते हैं कि कितनी इसमें ट्रांजेक्शन होंगी एवरेज, और कितना आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आईपीओ एडवाइजरी में हम एक इन्वेस्टमेंट बैंक को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए एज अंडर राइटर काम करेगा। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है इस प्रोसेस में। इशूइंग कंपनी के लिए, जो कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक चूज करेगा। लाइक हमने जेबी मॉर्गन को चूज कर लिया, या हमने मॉर्गन स्टैनली देख लिया, कोई अदर बैंक देख लिया, जो हमें एडवाइस करेगा कंपनी को उसके आईपीओ की, क्या आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी चाहिए, प्लस अंडरराइटिंग सर्विस देगा, आपके शेयर्स को बिकवाने का काम करेगा। जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इन क्राइटेरियाज पे काम करता है। बेसिकली रेपुटेशन कैसी है कंपनी की, क्वालिटी ऑफ द रिसर्च कैसी है, और इन्वेस्टमेंट बैंक कैसी क्वालिटी ऑफ रिसर्च करता है, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज कैसी है इन्वेस्टमेंट बैंक की, कितनी डील्स उसने क्लोज कराई है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन्वेस्टमेंट बैंक इशूड सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को, या वो पहले से काम करता है, या उसके अच्छे रिलेशनशिप है, या है या नहीं इस सेक्टर में, या वो कितने इन्वेस्टर्स के साथ उसका अच्छा रिलेशन है या नहीं है। तो इन चीज़ों पे ये चीज़ काम करती है कि उसी बेसिस पे हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक सिलेक्ट करते हैं। सेकंड आपकी डीडी होती है। डीडी में हम देखते हैं डॉक्यूमेंट चेक बेस्ड और रेगुलेटरी फीलिंग्स, लॉ एंड लीगल्स के हिसाब से क्या क्या हमें करना है। तो अंडर राइटिंग बेसिकली प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक एक्ट एज ए ब्रोकर, और ब्रोकर बन जाता है कि उसको ये सारी चीज़ें करनी है, प्लस इन शेयर्स को बेचना है, इशूइंग कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को सेल करना है बाय द इनिशियल सेट ऑफ शेयर्स। तो फॉलोइंग अंडर राइटिंग अरेंजमेंट्स देखता है वो इशूइंग कंपनी के बारे में। फर्म कमिटमेंट, कि किस एग्रीमेंट के थ्रू अंडरराइटर परचेज कर रहा है पूरा का पूरा ऑफर। आइदर ये एग्रीमेंट है कि अगर 90% शेयर नहीं बिके तो सारे शेयर इन्वेस्टमेंट बैंक को खरीदने पड़ेंगे, या कोई ये एग्रीमेंट है अगर 95% शेयर बिक गए तो 5% शेयर कंपनी वापस ले लेगी, इन्वेस्टमेंट बैंक को नहीं शेयर खरीदने पड़ेंगे। या इन्वेस्टमेंट बैंक कोई गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपके इतने सारे शेयर बिक जाएंगे, नहीं तो मैं उन्हें परचेज कर लूंगा। तो किस कमिटमेंट के अंडर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये चीज़ें उठाई हैं। बेस्ट एफर्ट एग्रीमेंट, इन्वेस्ट अंडरराइटर है वो गारंटी नहीं देता इस बेस्ट एफर एग्रीमेंट के अंडर कि मैं अपनी शेयर्स बेच पाऊंगा या नहीं। वो आपके लिए अमाउंट रेज कर देगा और वो सेल सिक्योरिटी करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। अगर बिक गए तो ठीक है, उसने अपना कमीशन ले लिया, नहीं बिके तो रहने दो, वो नहीं खरीदेगा। ऑल और द नोन एग्रीमेंट,
बेसिकली ऑफर शेयर्स हैं वो सोल्ड कर दिए जाते हैं और जो बाकी की ऑफरिंग है उनको कैंसिल कर देते हैं। सिंडिकेट्स ऑफ द अंडरराइटिंग, जो पब्लिक ऑफरिंग है वो मैनेज की जाती है एक अंडरराइटर के द्वारा, एंड जो मल्टीपल मैनेजर्स क्या काम करते हैं, बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक सिलेक्ट करते हैं जो लीड जनरेट करता है, और इस एग्रीमेंट के अंदर जो लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होता है वो स्ट्रेटजिक अलायंसेस बनाता है, स्ट्रेटजिक उसने बनाई कि इस शेयर्स को ऐसे बेचना है दूसरे बैंक को, और वो उसका पार्ट बेच देता है शेयर का, और एग्रीमेंट अराइज करता है कि हमें इस आईपीओ को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं मल्टीपल बैंक्स के बीच में या नहीं। प्राइसिंग अब कैसे डिसाइड होती है, हमने आईपीओ अप्रूव करा लिया एसईसी से, और इफेक्टिव डेट भी डिसाइड होगी किस दिन हमारा आईपीओ मार्केट में आएगा। सो जिस दिन आईपीओ मार्केट में आएगा इफेक्टिव डेट से पहले हम क्या करते हैं, इशूइंग कंपनी और अंडर राइटिंग डिसाइड करते हैं ऑफर प्राइस, कि हमारे शेयर का ऑफर प्राइस क्या होगा, लाइक किस प्राइस पर हम अपना शेयर सोल्ड करेंगे इशूइंग कंपनी को, या किसको कंपनी को बेचेंगे, और प्रिसाइज नंबर ऑफ शेयर, और कितने शेयर बेचेंगे। ये नहीं कि सारे बेच देंगे, सारा स्टेक दे दिया, 20% बेचेंगे, 50% बेचेंगे, 70% बेचेंगे, कितना स्टेक हम देंगे उसको। और ये डिसाइड करता है कि ऑफर प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होगा, मतलब, और इसका प्राइस जो कंपनी रेज करेगी वो किस ऑफर के बेसिस पे होगा। तो ये फैक्टर्स हैं, बेसिकली ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑफरिंग प्राइस को। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द रोड शो, जो हमने रिकॉर्डेड ऑर्डर बुक्स ली थी, या जो हमने एज ए इनिशियल बेसिस पे एज ए डमी लोगों को शेयर बेचना शुरू किया था, तो कितनी उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट आई है वो चीज़ देखते हैं। और कंपनी का गोल क्या है, कंपनी क्या बनना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, पैसा लिक्विडेशन में जाएगा, या बंदे कंपनी अपने पास रखेगी, कैसे करेगी, गोल पे डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ द मार्केट की कैसी कंडीशन चल रही है, मार्केट की कैसी मार्केट है, ये सारी चीज़ें। आईपीओ अंडर प्राइस है तो इश्यूज क्या होंगे, फुल सब्सक्राइब हो जाएंगे, ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे पब्लिक के द्वारा, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, इशूइंग कंपनी फुल वैल्यू भी शेयर्स की नहीं ले पाती। अगर आपका शेयर था 10 रुपए का, आपके पास वो 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, और आपने 10-10 के हिसाब से 10,000 शेयर के उसे इशू कर दिए, लेकिन वो अंडर राइट हो गया शेयर, शेयर की वैल्यू आपने गलती से डाल दी 5 रुपए, तो आपके 50,000 आ पाएंगे, आपकी पूरी कैपिटल रिकवर हो ही नहीं पाई। और अंडर प्राइसिंग बेसिकली कंपनसेट करती है इन्वेस्टर्स को रिस्क से, और वो इन्वेस्टिंग में आईपीओ में ले नहीं पाते। अगर ओवर सब्सक्राइब है तो वो काफ़ी गुड आईपीओ होता है। सपोज 10 रुपये का शेयर आपने ऑफर किया था, लेकिन उसकी डिमांड इतनी आ गई कि आपको 15 रुपये या 20 रुपये में बेचना पड़ा, तो आपके लिए काफ़ी गुड आईपीओ है, क्योंकि आपने उससे 2 या 3 गुना पैसा कमा लिया। स्टेबलाइजेशन कैसे काम करता है, बेसिक स्टेबलाइजेशन ऐसे काम करता है, आपने इशू कर दिया, मार्केट में भी आ गया, और अंडर राइटर ने क्या किया, एनालिस्ट को रिकमेंडेशन दी कि आपको ये शेयर खरीदना और ये शेयर बेचना है, और उसने मार्केट इशू कर दी, उसने मार्केट बना दी स्टॉक इशूड के लिए। जो अंडर राइटर है वो मार्केट की स्टेबिलिटी को देख लेगा, अगर वो मार्केट इनबैलेंस हो रही है, या वो परचेज आपके शेयर्स है ऑफरिंग प्राइस पे हो रहे हैं, उससे बिलो हो रहे हैं, तो स्टेबलाइजेशन देखेगा मार्केट आपने कितनी स्टेबल है, मार्केट इस चीज़ को कैटर कर भी सकती है या नहीं, इन शेयर्स को खरीद सकती है या नहीं, या आगे बढ़ेगी या नहीं, वो सारी चीज़ें देख लेगा। और स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी बेसिकली कैरिड आउट होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब आप उसको 3 महीने के लिए देख सकते हो, 4 महीने के लिए देख सकते हो। ये नहीं है कि आपने 20-20 महीने या 1 साल के लिए उस चीज़ को देख लिया, आप उसको काफ़ी छोटे बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो। और अंडर राइटर को इस टाइप पे फ्रीडम होती है ट्रेड करने की और इन्फ्लुएंस करने की प्राइसेस को, लाइक वो कितना चाहे जितना ट्रेड कर सकता है मार्केट को स्टेबल करने के लिए, या प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी मर्जी से, वो उसकी मर्जी है, उसके लिए वो कोई सस्पेंडेशन या कोई उस पर चार्जेस या पेनल्टीज नहीं लगेंगे। ट्रांजिशंस क्या होता है, बेसिकली फाइनल स्टेज होती है आईपीओ प्रोसेस की। ट्रांजिशंस में बेसिकली मार्केट कॉम्पिटिशन्स के लिए ट्रांजिस्ट होता है, लाइक ये जो 25 डेज हो जाते हैं हमारे आईपीओ को, उसके बाद शुरू होता है, और इसको क्विट पीरियड भी बोलते हैं, जो एसईसी ने हमारा बोला है कि ये मैंडेटरी है इस चीज़ के लिए। इस पीरियड के दौरान जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करता है, वो मैंडेट डिस्क्लोजर कराता है, लाइक डिस्क्लोजर और प्रोस्पेक्ट्स जो उसने उसमें कंडीशंस लिखी हैं, और जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ज़रूरी है उन शेयर्स को पूरा करने के लिए, उसको वो चीज़ फॉलो करानी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ करके, और इसी से उसकी डील है क्लोज होगी। और आफ्टर द 25 पीरियड डेज, अगर उसके 25 पीरियड डेज लेस हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसके बाद अंडर राइटर क्या करेगा, एस्टिमेट रिगार्डिंग द अर्निंग, वो अपनी अर्निंग के लिए एस्टिमेट करेगा उसमें कितनी अर्निंग्स हुई हैं, प्लस वैल्यूएशन करेगा इशूइंग कंपनी का, जो इशूइंग कंपनी है उसको वैल्यू करेगा किस बेसिस पे वैल्यू हो रही है, प्लस इसकी जो वैल्यू थी पहले 1,000 करोड़ थी, अब आईपीओ के बाद इसकी वैल्यू 5,000 करोड़ हो गई है, तो उसको वैल्यू करेगा, और अंडर राइटर एज्यूम करेगा एज ए रोल ऑफ एडवाइजर मैंने अपना काम पूरा कर लिया, और इवेल्युएटर द इशू, और इवेल्युएट करेगा इश्यूज को कि ये इशू सही से हुए हैं या नहीं, और इनको कैसे मैं कैटर कर सकता हूँ या नहीं, उन सारी चीज़ों को उसको देखना पड़ता है।
सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द इक्विटी रिसर्च। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में आईपीओ एडवाइजरी देखी थी, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक पार्ट है, एक प्रोसेस है, एक टाइप है। तो इसमें हम इक्विटी रिसर्च देखेंगे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। सो इक्विटी रिसर्च बेसिकली होती क्या है? इक्विटी रिसर्च प्रोफेशनल्स, अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इक्विटी रिसर्च इज जस्ट लाइक डेट कि अगर आपको 100 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, या अगर आपको 3 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, और आप अपनी कैपिटल को लगाने से पहले किसी फर्म से, सपोज आप इंटरेस्टेड हो रियल एस्टेट सेक्टर में या टेक सेक्टर में, और आप किसी फर्म से कंफर्मेशन लेना चाहते हो उस चीज़ की कि सेक्टर कैसा काम कर रहा है। मैं अपने 100 करोड़ या अपने 500 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ, और मेरे को एक ऐसे सेक्टर में चाहिए जिसमें मेरे पैसे डूबे ना, और मेरे को एक काफ़ी बेटर रिसर्च मिले और रिटर्न्स मिले। तो इक्विटी रिसर्च उस सेक्टर में काम करती है, आपको रिकमेंडेशंस निकाल के देती है कि ये सेक्टर इतना बेटर काम कर रहा है, इसकी कंपनी ये इतना अच्छी काम कर रही है, आपको इस सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए। बेसिकली इक्विटी रिसर्च प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूसिंग एनालिसिस एनालिसिस करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, और रिपोर्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सपोज हमने रियल एस्टेट सेक्टर लिया, तो रियल एस्टेट सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, आपको रिकमेंडेशन देंगे, आपको ब्लैकस्टोन के शेयर खरीदने चाहिए, या आपको डीएफ इमार के शेयर खरीदने चाहिए, या डीएचएफएल के शेयर खरीदने चाहिए। प्लस रिपोर्ट्स देंगे आपको कि आपको इस बेसिस पे खरीदने चाहिए, कब का ये कंपनी ग्रो कर रही है या सेक्टर ग्रो कर रहा है, या इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी बेटर है, इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ये शेयर क्यों खरीदें। ग्रुप ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट एंड एसोसिएट इन द एट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। और बेसिकली इसमें दो तरह के लोग होते हैं, सेल साइड प्लस बाय साइड। जो बाय साइड को रेकमेंड कर रहे हैं, या जो सेल साइड को रेकमेंड कर रहे हैं, या एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेकमेंड कर रहे हैं। सो मेन पर्पस क्या होता है इक्विटी रिसर्च का? मेन पर्पस होता है इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस किसी सेक्टर के बारे में, कि मैंने ये इतना डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस किया है इस सेक्टर का, और रेकमेंडेशन की है कि आप इन शेयर्स को बाय करो, या आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सेल करो। इन वैल्यूएशन है इस नंबर के बेसिस पर। जो बैंक है वो इक्विटी रिसर्च को यूज करते हैं एज अ सपोर्टिंग, कि मतलब मेरे को इस चीज को खरीदना चाहिए, इस चीज को बेचना चाहिए, एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस चीज के इक्विटी रिसर्च को मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए एज अ सपोर्टर हो गया कि मैं शेयर को खरीदूंगा या बेचूंगा। और सेल्स एंड ट्रेडिंग क्लाइंट्स के लिए, जिनके वो सेल्स करते हैं, जिनके लिए शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं टाइमली बेसिस पर। रिपोर्ट आपके सामने है जेपी मॉर्गन की। सो ये एसोस कंपनी का इन लोगों ने इक्विटी रिसर्च किया है। तो इसका प्राइस टारगेट है बेसिकली 6600 और ये कंपनी प्राइस पे काम कर रही है 5123 के, और इसका टारगेट प्राइस है 6। ये आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन आ गया, कंपनी क्या काम करती है आपका, ये आ गया किस सेक्टर में काम करती है, क्या डिलीवर करना चाहती है फ्यूचर में, और कैसे करेगी। और ये बेसिकली इसके बिड्डा मार्जिन आ गए, फाइनेंशियल्स आ गए कि कितना कितना ये प्रॉफिट्स कमा रही है। बेसिकली पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, नंबर्स के बेसिस पे ईपीएस क्या है कंपनी का, ईबिट्डा क्या है, ईबिट क्या है, कितने परसेंट मार्जिन है, कितनी प्री टैक्स इनकम है, और कैसे एडजस्टेड पीज या ईबिट्डा चल रहे हैं। कंपनी का डेटा प्राइस क्या है, कंपनी का डेट ऑफ प्राइस क्या है, किस दिन ये प्राइस है, टारगेट क्या है कंपनी का, कहाँ जाना चाहती है कंपनी, 52 वीक्स के बाद कंपनी कहाँ जाएगी, मार्केट क्या का होगी, शेयर्स क्या होंगे, और प्राइस परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की लास्ट 5 ईयर में, कैसे कैसे उसने कितने ग्राफ पे हमारा काम चल रहा है, कैसे ग्राफ गिरा है, कैसे बढ़ा है। तो ये चीज़ें शो करती है। प्लस आपकी सेल्स दिखाती है FY 8 से लेके 18 तक, 10 साल की सेल्स हमने दिखाई कि कितना कंपनी का नंबर यहाँ से आके यहाँ तक बढ़ गया। तो बेसिकली कंपनी में ग्रोइंग स्टेज पे कंपनी वर्क कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे कंपनी बढ़ रही है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस देती है कि आपको शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं, और कितने टारगेट पे जाएगी। ये बेसिकली एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट हमने देख तो ली, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो लोग रिकमेंडेशन देखते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक चीज़ों को देखने के पीछे, और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 आता है इंडस्ट्री रिसर्च। सपोज हमने रियल एस्टेट लिया कि हमें अगर रियल एस्टेट में काम करना है, तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, रियल एस्टेट का केगर क्या है, किस बेसिस पे काम कर रही है, कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फ्यूचर में। और मैंने केगर रिकमेंडेशंस देखी उसकी, सपोज मेरा केगर है 10% इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 10% से ग्रो करेगी। तो केगर के बेसिस पे मैंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि इंडस्ट्री के ग्रो के चांसेस ज़्यादा है। प्लस इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी काफ़ी कम है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्री के लिए, या गवर्नमेंट इसको काफ़ी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट या फंड्स प्रोवाइड कर रही है एसएमई बेसिस पे, या बैंक्स को
एनकरेज कर रही है कि इनको कम पैसों में फंड दो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मत लो इनसे, या एसएमईज में अगर आप, या आप बैकवर्ड एरियाज में फ्लैट्स बना रहे हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बेचते हो, तो आपको काफ़ी सब्सिडीज और फायदे मिलते हैं। तो इंडस्ट्री रिसर्च क्या है, क्या क्या इसके बेसिकली फ़ायदे हैं, क्या इसको गवर्नमेंट फ़ायदा देना चाहती है इस इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री रिसर्च होती है, उसके बाद मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले जाते हैं, मैनेजमेंट कैसी है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी हमने सेलेक्ट की, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, हमारी मैनेजमेंट क्या बोलती है, हमारी मैनेजमेंट को क्या क्या चाहिए उस इंडस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी, एडिशनल चीज़ें देखनी चाहिए जो मैनेजमेंट हमें ये मैनेजमेंट हमें बोलती है, रिकमेंड करती है कि आप ये चीज़ें देखो। लाइक हमें इसमें एलबीओ देखना चाहिए रियल एस्टेट में, लेवरेज देखनी चाहिए, कंपनी की लेवरेज कितनी है, कितनी फिक्स कॉस्ट होगी उसके ऊपर। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, लाइक कंपनी ने पिछले 10 साल में क्या क्या अचीव किया है, 10 में कितना पैसा कमाया है, कितनी सेल्स की है, या कंपनी की EBITDA मार्जिन क्या है, EBIT क्या है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, EPS क्या था कंपनी का, अर्निंग क्या थी, लॉस में थी या नहीं, कितने कंपनी ने प्रोजेक्ट क्लोज किए हैं, क्या डेटर्स रेशियो है कंपनी का, क्या क्रेडिटर्स है, एजिंग क्या है उनकी, जो उनके डेटर्स का रिटर्न पीरियड है, पैसा देने का पीरियड है, वो कितने दिन का है, कितने दिन में हमें पैसा मिल जाता है उनसे। उसके बाद करते हैं फोरकास्टिंग चीज़ों की। अगर सपोज कंपनी 10 साल की सेल्स उसकी बेटर है, 10 साल से बेटर पैसा कमा रही है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि ये कंपनी आगे कितना बढ़ सकती है, कितना आगे जा सकती है, कितने और पैसे कमा सकती है, कितना और एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकती है, बेसिकली वो फोरकास्टिंग हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, कि फोरकास्टिंग के बेसिस पे हमने कंपनी का वैल्यूएशन कर दिया, लाइक कंपनी की अगर 10% है, कंपनी की अगर 20% है, और आज कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ है, तो हम 20% के अगर के हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपाउंडिंग, की कंपनी की वैल्यू आगे फ्यूचर में 1000 करोड़ हो जाएगी या 2000 करोड़ हो जाएगी, मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से या कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से। तो वो वैल्यूएशन होती है। उसके बाद हम फाइनल स्टेप में रेकमेंड कर देते हैं क्लाइंट को कि आपको इस सेक्टर में इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए और इतने खरीदने चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपके लिए रिकमेंडेड होगा। तो वो चीज़ हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आपको इस शेयर का, इस चीज़ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन दिस सेक्शन ऑफ द इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देयर विल बी अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, प्लस कंपटीशन कितना है मार्केट में, इंडस्ट्री किस ट्रेंड पे ग्रो कर रही है, 10% पे ग्रो कर रही है, 20 पे कर रही है, प्लस कंपटीशन कितना है, कितनी मार्केट में कंपटीशन है, कितनी आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आगे वो बढ़ना चाहती है, या कितने आपके राइवल हैं जो आपको गिराना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखते हैं। फ्रेमवर्क देखते हैं पोर्टल का 5 मॉडल के हिसाब से, कि थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंस है या नहीं, सप्लायर्स का क्या बिहेवियर है, आपके कस्टमर्स का क्या बिहेवियर है, राइवल्स है का क्या बिहेवियर है आपके खिलाफ, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या बोलते हैं। पेस्टल एनालिसिस करते हैं हम, बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी एनालिसिस करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हमने सारी डायनामिक इंडस्ट्री को कवर कर लिया, सारे फैक्टर्स को देख लिया, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या है, कौन सी सरकार रियल एस्टेट के फेवर में है, कौन से अगेंस्ट है, इकोनॉमिक हमारी रेपो रेट क्या है या कैश रेशियो क्या है, पैसा है या नहीं इकोनॉमी में, सोशल ट्रेंड क्या है, अगर आप कहीं पे बिल्डिंग्स बना रहे हो या किसी किसी रेजिडेंटल एरिया में कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो सोशल ट्रेंड्स क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, कहीं आपकी प्रॉपर्टी स्टेट में लग जाएगा, ये चीज़ है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से बढ़ रही है, कैसे टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को मीट किया जा सकता है, कैसे कम काम में, टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं कंपनी के अंदर, ये अंडरस्टैंड करना कि क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम, जो उसकी मैनेजमेंट टीम है कंपनी की, वो कितनी क्वालिफाइड है, कितनी अच्छी है, उनके बंदे कितना स्ट्रेटजिक सोच सकते हैं, या कितने क्वालिफाइड है, कितने एक्सपीरियंस पर्सन उन लोगों ने हायर कर रखे हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। सपोज अगर मैं इस बात को लूँ, अगर गूगल का सीईओ किसी छोटे इंस्टीट्यूट से है या उसको वे ऑफ द क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करवाएगा जितना करंट सीईओ काम कर रहा है, या जितना एक बड़ी इंस्टीट्यूट या एक अच्छे एक्सपीरियंस वाला बंदा कर सकता है। तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि सीईओ ही वो चीज़ होती है जो कंपनी को आगे भी बढ़ा सकता है, आसमान में भी पहुंचा सकता है और डुबा भी सकता है। प्लेस देखते हैं कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कहाँ रियल वैल्यूज ऐड कर सकता है, लाइक उसकी डायरेक्ट एक्सेस कितनी है मैनेजमेंट की, जो क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह हो रही है, या वो कितना साइट विजिट कर रहे हैं, या ओकेशंस पे कितना जा रहे हैं। ऐसा पता चला कि वो लोग ओकेशन पे साइट विजिट कर ही नहीं रहे और काम कुछ भी हो रहा है, तो वो भी चीज़ कंपनी के लिए सही नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बेसिस पे देखते हैं कि वो मैनेजमेंट से आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यानी बिजनेस के बारे में, और असेसमेंट कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंस का, हम कितने कॉम्पिटेंट हैं,
और उसकी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के बेसिस। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिजल्ट और जो होते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की ये चीज़ कि आप एनालाइज करो कि हिस्टोरिकल बेसिस पे उसने कितना पैसा कमाया है, लाइक उसकी सेल पिछले आने वाले 10 साल में कितनी थी या आने वाले 12 साल में उसने कितना सेल किया है, जिसके बेसिस पे उसके एबिटा मार्जिन से एबिट मार्जिन कितने हैं, उसकी डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, उसकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लेवरेज उसके बिजनेस में कितना है, कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वो डेट को यूज़ कर रहा है, कितना इक्विटी को यूज़ कर रहा है, अगर उसकी आगे कैपेसिटी है भी या नहीं आगे 5 साल बिजनेस रन करने की, या उसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, कितना वो आगे अपने धंधे को चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को कंपेयर करो गाइडेंस से, जो हमारी गाइडेंस हमें दी गई है कि आपको ये फ्यूचर में करना है और ये चीज़ें आप देख सकते हो, या कंपेयर को एनालिटिक्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से। लाइक अगर आपका सेक्टर 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी रेवेन्यू भी आगे 10% या 5% की ग्रोथ से बढ़ेगी। अगर उससे कम बढ़ रही है तो वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। परफॉर्मेंस देखते हैं स्टॉक की इसके बेसिस पे, रियलिटी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। लाइक आज स्टॉक आपका वेरी कर रहा है 10% की रिटर्न पे और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आगे 20% पे जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं फ्यूचर में फोरकास्ट करने के लिए। एनालिस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को, कैसे एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हैं, प्लस वो बिलो या अबव तो नहीं है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के। लाइक मार्केट की एक्सपेक्टेशन 20%, लेकिन आपके हिस्टोरिकल्स पीछे आ रहे हैं -6%, तो काफ़ी बिलो है। अगर आपकी मार्केट मार्केट ही ग्रो कर रही है 20% की रेट से और आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है 100% की रेट से, तो वो अबव एक्सपेक्टेशन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो चीज़ गलत है। फोरकास्टिंग देखते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट को। बेसिकली फोरकास्टिंग क्या होती है, ये एक आर्ट है कि मतलब कैसे आप एक धंधे को फोरकास्ट कर रहे हो। ये कोई साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स लाइक अ आर्ट कि कैसे एक धंधे को मैंने फोरकास्ट किया है, कैसे कितना अच्छी तरह मैं एक धंधे को फोरकास्ट कर सकता हूँ। तो इसके बारे में बेसिकली हम देख सकते हैं कि कितना गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट है या कितना प्रोवाइड ब्रेक डाउन कर रहा है आपको, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स उसकी कितनी बेस्ट है, किस बेसिस पे वो फोरकास्ट करता है चीज़ों को। समराइज करते हैं पॉइंट्स को आर्टिकल्स के अंदर, और दो वेज होते हैं फोरकास्टिंग के, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में बेसिकली क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सबसे पहले देखते हैं, इंडस्ट्री की साइज देखी, उसका ग्रोथ देखा, प्राइसिंग देखी कि कॉम्पिटिटर या राइवल्स किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस प्राइस पे काम कर रहे हैं। डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट का शेयर कितना है कंपनी का। लाइक अगर मार्केट 1000 करोड़ की है और कंपनी हमारी 10% उस पर प्रोवाइड कर रही है, तो हमारी कंपनी 100 करोड़ की उस चीज़ में वैल्यू दे रही है, तो मार्केट का शेयर क्या है, और फिर उसी के बेसिस पे हम अपनी रेवेन्यू पर वर्क करते हैं। बॉटम अप अप्रोच कैसे काम करती है, ये स्टार्ट होती है बेसिकली रेवेन्यू के ड्राइवर से कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं कंपनी के, या कितनी कंपनी सोल्ड कर रही है यूनिट, और उसी के बेसिस पे हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं। लाइक अगर आपकी आज 1000 कस्टमर्स हैं और आप सोल्ड कर रहे हो 10 यूनिट पर डे, तो आपके आने वाले टाइम में मार्केट 20% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो आपके 1200 कस्टमर अगले साल हो जाएंगे और आप उसके बेसिस पे अपनी यूनिट भी ज़्यादा सेल करोगे। प्रोफेशनल्स होते हैं जो इक्विटी रिसर्च में फोरकास्ट करते हैं क्वालिटी बेसिस पे, और कंपनी की रिपोर्ट्स को देखते हैं सेमी एनुअली बेसिस पे देखते हैं। अब लास्ट आ गया वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बेसिकली कंपनी को वैल्यू करना, आज वैल्यू कितनी है और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मार्केट के बेसिस पे वैल्यूएशन कितनी होगी। द ओनली थिंग दैट इज मोर, वैल्यूएशन एक बेसिकली तरह से आर्ट है, एक चीज़ को फोरकास्ट करने की आर्ट, कि कैसे हम चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं और कैसे एक चीज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं। जो वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं वो एजम्पशंस और फोरकास्ट के बेसिस पे बिल्ड होते हैं, और आप इनको अजम्पशंस से ज़्यादा इसको आप साइंस मान सकते हो, एज ए वैल्यूएशन मान सकते हो। और वैल्यूएशन क्या है, हमारी बेसिकली मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को डिस्काउंट रेट पे, कि आज मेरी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, जैसे अगर मेरे को 100 रुपये हैं आज सपोज आर मेरे पास, और मैं उसको 10% के हिसाब से डिस्काउंट कर रहा हूँ। लाइक आज मेरे 100 रुपये की वैल्यू 1 साल पहले कितनी थी, बाय मैंने 1/10 किया, तो वो कुछ आ गया मेरा 89.99, 89.99 की वैल्यू थी, उस पर 10% मैंने लगा के आज 100 रुपये कमाए हैं। तो वो चीज़ है मेरी वैल्यूएशन की, मतलब एक चीज़ को बैक कैलकुलेट करना। सो बेसिकली ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकती है। और वैल्यूएशन जो इक्विटी रिसर्च में होती है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है आपकी, जो 3 स्टेटमेंट मॉडल्स बनते हैं, और बेसिकली डीसीएफ वैल्यूएशन यूज़ करते हैं हम इसमें इक्विटी रिसर्च में। और फाइनेंशियल मॉडलिंग जो प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको काफ़ी स्किल्स, आपकी जितनी फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेस्ट होगी आप उतने ही एक्सपर्ट्स होगे। रिकमेंडेशन अब इसका लास्ट स्टेप है। रिकमेंडेशन पे बेसिकली हमने सब कुछ कर लिया, पीछे वैल्यूएशन भी कर दी, अब हमें रेकमेंड करना है कि आपको इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, होल्ड करने चाहिए या बेचने चाहिए। तो हम रेकमेंड सेक्शन में क्या करते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के पास एक टारगेट प्राइस आ जाता है। लाइक एक कंपनी या 100 रुपये डील कर रहे हो, मेरा टारगेट है 150 तक बढ़ेगी,
तो मैं टारगेट प्राइस या प्राइस टारगेट को सजेस्ट करता हूँ, जो इन्वेस्टर्स को मैं बताता हूँ कि आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने स्टॉक से इन ए ईयर टाइम, मतलब एक साल में आपका 150 रुपये का टारगेट हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस वो एक्चुअल रिकमेंडेशंस भी देते हैं इन्वेस्टर्स को, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कहाँ सर्किट लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और ये बेसिकली बैंक टू बैंक वेरी करती हैं सारी चीज़ें, कि आप उनको रिकमेंडेशंस कैसे दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, आप उनको खरीदने की सलाह दे रहे हो, बेचने की दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो। बेसिकली तीन तरह के रिकमेंडेशन देखें, बाय करो, ओवरवेट या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो जब तक मार्केट रुक जाती है, या फिर सेल करो अगर मार्केट गिर रही है तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली उसमें देखते हैं इक्विटी रिसर्च में। तो अगर आप इक्विटी रिसर्च में करियर बनाने की सोच रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स पे। आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल मास्टर्स होनी चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिकली पहले अपना एक्सेल एडवांस करना चाहिए। एक्सेल इज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल के बिना आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद आपका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको अलग अलग मेथड पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे वैल्यूएशन काम करता है, कैसे निकलता है, और कैसे क्या क्या मेथड और कहाँ कौन सा मेथड यूज होता है। एक्सेल आपका बेस्ट होना चाहिए, और एक गुड एनालिस्ट बनने की आप मतलब एक्सप्लोरर होने चाहिए, एनालिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, कि इन चीज़ों को ऐसे 50 तरीकों से या 50 रिकमेंडेशन के हिसाब से सोचा जा सकता है। अभी आप एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में बेटर करियर बना सकते हैं। और बाय आउट और एलबीओ फंड क्या होते हैं, बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा मैच्योर बिजनेसेस में। एलबीओ फंड्स लाइक जो बेसिकली रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, यूजुअली टेक द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस में, और लेवरेज करते हैं उसके इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक अमाउंट ऑफ डेट देके। बेसिकली डेट ज़्यादा जाता है इसमें, रियल एस्टेट के बिजनेस में सबसे ज़्यादा होती है एलबीओ। सो ब्लैकस्टोन है बेसिकली हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, केकेआर है रियल एस्टेट प्लस मैच्योर कंपनीज में करता है, कार्लाइल रियल एस्टेट प्लस लॉजिस्टिक सर्विसेज में करता है। अब टिपिकली एग्जिट रूट क्या है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के, टोटल एग्जिट अगर ये करना है तो स्ट्रेटजिक फर्म को बेच देंगे। लाइक जैसे स्ट्रेटजिक फर्म हमारी मान सकते हैं, अगर जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीदा तो उसका स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर है, बिकॉज जोमेटो भी वही काम कर रहा है जो उबर ईट्स कर रहा है, तो जोमेटो अगर उबर ईट्स को खरीद रहा है तो उसका बिजनेस पूरा एक्वायर कर लेगा। तो ऐसे बेच देंगे, या सेल टू स्पॉन्सर, उस बंदे को बेच देंगे दूसरी पीई फर्म को जो उस धंधे को स्पॉन्सर कर रहा है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसको बेच के चले जाएंगे। पार्शियल एग्जिट करना है इन लोगों को तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेंगे, उस कंपनी के सारे शेयर खरीद के वहां बेच देंगे, या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, उसके मैनेजमेंट में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा के खुद मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे, पूरा कंपनी का कंट्रोल ले लेंगे, या फिर आईपीओ लॉन्च कर देंगे कंपनी का। ट्रेड ऑफ बिटवीन डेट एंड इक्विटी, बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान क्या है इक्विटी और डेट के। चलो अब पहले इक्विटी के देखते हैं। सबसे बड़ा इक्विटी का फायदा है कि हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट देना नहीं पड़ता, ना कोई मैंडेटरी फिक्स पेमेंट देना पड़ता है, मैच्योरिटी डेट नहीं होती कोई भी, ओनरशिप या डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं होता किसी भी बिजनेस पे, सॉरी, ओनरशिप या डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है हमारे बिजनेस पे, वोटिंग राइट्स होते हैं हमारे पास, इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमारे पास, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है हमें, डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू डिविडेंड मिल गया अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, या हमारी कैपिटल एप्रिशिएट होगी टाइम के साथ साथ। उसके बाद लास्ट क्लेम होता है फर्म की एसेट्स पे, अगर लिक्विडेशन के टाइम पे फर्म हमारा पैसा नहीं दे गई तो एसेट्स और रिसोर्सेज हमारे होंगे। मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक ऑपरेशंस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं टाइम के साथ। और बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं डेट के, डेट के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है, सबसे बड़ा बर्डन, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल होता है, लाइक आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, आप पैसा कमाओ या ना कमाओ। फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटी पर क्लेम होता है फर्स्ट लिक्विडेशन के टाइम, अगर कल को पैसा नहीं देगा तो एसेट और लाइबिलिटी रिसोर्सेज पर हम कब्जा कर लेंगे। रिक्वायर द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मीट करना पड़ता है तभी आप कोई लोन दे पाओगे। रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी वाल, बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं होती इनके पास, तो ऑपरेशंस में ये मैच्योर नहीं हो पाते, जा नहीं पाते। लोअर कॉस्ट होती है इक्विटी, नहीं 5 या 10% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इक्विटीज़ का प्रॉफिट अगर हो तो उनकी रिटर्न होती है बेसिकली 20 या 25%, तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मोर रिस्क मोर गेन। लोअर रेट ऑफ रिटर्न होती है इक्विटी से, डाइल्यूशन नहीं कर सकते लोग इक्विटी का, और कंपनी को डिफॉल्ट या बैंकरप्टी के टाइम पुश कर सकते हैं लोग, पैसा निकाल सकते हैं। डेट रीपेमेंट प्रोफाइल्स क्या होती हैं,
सबसे पहले अगर पेमेंट इन काइंड होती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिसोर्सेज के थ्रू या उसके थ्रू अपना पैसा पे कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिसोर्सेज के थ्रू अपना पैसा पे कर सकते हो। और मैगनाइज फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या हायर फाइनेंस के लिए, अगर आपको बिजनेस में जाना है और आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको हाई यील्ड पे लोन दे देते हैं, जिसका काफ़ी पेमेंट काफ़ी महंगी होती है। सीनियर डेट ट्रांचेस क्या होती है, बेसिकली आपने डेट ली किसी बैंक से और वो काफ़ी बड़े लेवल की डेट है, तो उसको आपको ट्रांचेस या टुकड़ों में पे करना पड़ेगा। सीनियर डेट ट्रांचेज है क्या होती है, बेसिकली इक्वल अमोर्टाइज होती है साल दर साल। लाइक आपने 100 करोड़ की डेट ली तो 10 10 करोड़ के हिसाब में आप उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ होती है सीनियर डेट ट्रांचेज। डेट कैपेसिटी असेसमेंट के टाइम पे मेजर क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि हमें इस कंपनी को डेट देना चाहिए या हमें इस कंपनी को डेट नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली ये जनरल मेजर्स हैं, ये तो हमें देखने ही पड़ेंगे। इन जनरल मेजर्स को हमें देखे बिना काम होगा ही नहीं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है लेवल ऑफ इबिडा, कि हमारे पास इबिडा कितना है, क्या इबिडा है और कितना वो पैसा कमा रहे हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। वोलेटिलिटी कितनी है बिजनेस में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी क्या है इबिडा की, आपका इबिडा 5 6 10 8% से स्टेबल है या वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लाइक पहले साल 5 था, दूसरे साल 10 है, तीसरे साल फिर से 1 हो गया, चौथे साल 11 है, तो स्टेबल है या नहीं। अगर आपका इबिडा स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब आपकी रेवेन्यू स्टेबल है, आप एक स्टेबल रेवेन्यू कमा रहे हो, आपके रेवेन्यू टाइम के साथ गिर या बढ़ नहीं रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आता है कैपिटल में तो नहीं गवा देते हो। साइकिलिटी क्या है, आपका बिजनेस साइकिल बिजनेस है या मतलब सीजनल बेसिस पे चलता है, पूरा साल चलता है। रिस्क क्या है आपके बिजनेस में, कितना रिस्क है। लाइक कोई फिक्स रिस्क तो नहीं है, जैसे एयरलाइन के बिजनेस में होता है, अगर आपने वो प्लेन लीज पे लिया तो उस केस में आपको अगर कोई पैसेंजर नहीं आ रहा तो प्लेन की आपको कॉस्ट आएगी ही आएगी। वो रिस्क है या नहीं, या कोई टेक्निकल रिस्क है बिजनेस में। कंपटीशन कितना है, कितने आपके कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ है, कितने आपके कॉम्पिटिटर ज़्यादा बड़े हैं आपसे। बैलेंस शीट के मेजर्स में देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की कितनी है। आपने सपोज आपके पास 100 करोड़ की इक्विटी है तो आपने उस पर 200 करोड़ का डेट तो नहीं ले रखा है, आपने उस पर 50 करोड़ का डेट ले रखा है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। डेट टू कैपिटल देखेंगे, अगर आपकी टोटल कैपिटल 100 करोड़ है, पता चला 100 की 100 करोड़ डेट के हिसाब से ले रखी है, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। डेट टू एसेट, अगर आपके पास एसेट 50 करोड़ की और आपने लोन 100 करोड़ का ले रखा है तो वैसा नहीं हो सकता, आपको लोन कम मिलेगा। कैश फ्लो मेजर्स देखते हैं कि टोटल डेट टू इबिड्डा कितने हैं। टोटल डेट मेरा 100 करोड़ का है, इबिड्डा में महीना कमा रहा हूँ 20% या 20 लाख 20 करोड़ रुपए। सीनियर डेट टू इबिड्डा देखते हैं, सीनियर डेट में 100 करोड़ की ले रखी है, इबिड्डा में 30 करोड़ का कमा रहा हूँ। नेट डेट देखते हैं इबिड्डा, नेट डेट बेसिकली इंटरेस्ट घटाने के बाद आपकी डेट कितनी है। तो नेट डेट अगर मेरी 100 करोड़ की है और इबिड्डा में 50 करोड़ का कमा रहा हूँ तो वो भी आपकी बेटर रेशियो है। कैश इंटरेस्ट रेशियो देखेंगे कि आपकी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कितनी